Students, you are most welcome on Digital Maths. See, already you have gone through the class 10, chapter number 15, probability chapter. All the concepts you have gone through, and exercise 15.1, question 1 to 12 you have seen, and each and every question has been solved. Yeah? This is exercise 15.1, question number 13 to 25. See, I will request you to have pen, pencil, rubber, everything, so that you can practice, you can roughly write and you can practice each and every sum. See, practice maths, practice is required, so we will go through each and every question, but you have to note it down and you have to go through it. And if you understand each and every question properly, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है एवरीथिंग, सो दैट अकॉर्डिंग टू योर सजेशन वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. A dice is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. See, first of all, if we are talking about dice, yeah, so dice would be having 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This would be the 6 numbers. First question is for prime number. First question is for prime number. So which are the prime numbers according to you? So prime numbers over here would be 2, 3 and 5. So total 3 prime numbers and total numbers are 6. So answer would be 1 by 2. See, this is what I am providing the solution. In next we will go through the sequence as well. Second is a number lying between 2 and 6. So which are the number lying between 2 and 6? So that is 3, 4 and 5. So total 3, again 3 upon 6, that is 1 by 2. क्लियर? समझ में आया आप लोगों को किस तरह से क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एंड ऑड नंबर. सो ऑड नंबर में 1, 3 and 5 are the odd numbers. So again 3 by 6 because 3 are odd numbers, so 1 by 2. So this would be the answer. क्लियर? समझ में आया? जस्ट हम लोग चेक कर लेते किस तरह से हमें लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is 6. Probability of event is favorable event upon total event. So total number of prime numbers, that is 3, that are 2, 3 and 5. So 3 by 6, 1 by 2 and 0.5. So probability of getting a prime number is 0.5. You can go with 1 by 2 as well, no issues. Then total numbers lying between 2 and 6, that are 3, that is 3, 4 and 5. So probability of getting number between 2 and 6 is 3 upon 6, 1 by 2, that is 0.5. See, it is written between 2 and 6, that's why we are not counting 2 and 6. If it was written number from 2 to 6, so you have to count 2 as well and 6 as well. But here lying between it is given, so we have to not connect. Then question number C, total numbers of odd numbers, so that is 1, 3 and 5, that is total 3 odd numbers are there. So probability of getting an odd number is 3 upon 6, that is 1 by 2 equals to 0.5. क्लियर? समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखो तो आपको क्लियर आ जाएगा. नाउ one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting card. See, this is the based on card question, so you have to refer the introduction or concept of cards, which I have told in introduction part. You can go in videos concept of cards, that is part 8. So there you will get concept of cards. You can go through each and everything, so you will be easily getting. आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें को कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने. So here first of all, one card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. First, a king of red color, a face card, a red face card. See, total पहले events देख लेते, that is 52 because 52 cards होते हैं एक deck के अंदर, and probability of event is favorable event upon total event. Now first question, if we are talking about first question, a king of red color. See, red color के king दो होते हैं, इफ़ यू नो, दैट इज वन ऑफ हार्ट, क्लियर, एंड वन ऑफ डायमंड. सो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे 2 हो जाएंगे. सो 52, दैट इज 2, फेवरेबल इवेंट इज 2 एंड टोटल इवेंट दैट इज 52. सो आंसर हमारा आ जाता है 1/26. दिस वुड बी फॉर अ किंग ऑफ रेड कलर फर्स्ट. देन सेकेंड, अ फेस कार्ड. अगर आपने कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स देखे होंगे तो टोटल देर आर 12 फेस कार्ड्स, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक, और ये तीनों हर एक पार्ट के अंदर मीन्स डिफरेंट हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब. सो 4, दैट इज 12.
सो हमारे प्रोबेबिलिटी हो जाती है 12/52, दैट इज 4 3s are 12 and 4 13s are 52. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ थर्ड, इट इज गिवन अ रेड फेस कार्ड. और रेड फेस कार्ड मतलब देखो फेस कार्ड हमारे हमने बोला किंग क्यू एंड जे, और रेड कलर के दो टाइप्स के होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड. सो 3 2s are 6. सो यहाँ पे हो जाएगा 6/52. सो 2 3s are और 2 26 are. सो 3/26. ये जस्ट मैंने रफली सॉल्व किए हैं. नाउ यू कैन गो थ्रू वन बाय वन स्टेप. टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर दैट इज 2. सो 2/52 इक्वल्स टू 1/26. आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन लीव इट as it is 1/26. Clear? Then question number 2, total number of face cards. We know there are total 12 face cards. I told king, queen and jack, और each type के 4 होते हैं, so 3 4s are 12. So 12/52 that is 3/13. आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, no need to time waste. You can go for 3/13 as well. Then total number of red face cards means डायमंड और हार्ट में कितने 3 face cards में टोटल 6 face cards हुए. So getting a red color of king red face card, sorry, it is typing mistake. Red face card equals to 6/52 equals to 3/26, that is equals to 0.11. डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, that is 3/26. क्लियर? समझ में आया? कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक है, देखो टाइपिंग मिस्टेक को छोड़ के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. बाकी कहीं मिस्टेक हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है. फोर्थ, the jack of hearts, a spade, the queen of diamond. See what it is written in fourth. Jack of hearts. देखो हार्ट का जैक सिर्फ 1 है. देखो ऐसे 4 जैक है टोटल. जे जो है हार्ट का है, डायमंड का है, स्पेड का है. क्लियर? जस्ट फॉर इन रफली मैं बना रहा हूँ, डोंट इम्प्रोवाइज इट. सो इस तरह से 4 है, बट हमको क्या पूछा है हार्ट्स. सो हार्ट्स का तो सिर्फ 1 है, सो 1/52 आएगा आंसर. क्लियर? सो फर्स्ट का 1/52. सेकंड, अ स्पेड. टोटल स्पेड्स कितने हैं? टोटल स्पेड्स आर 13. हर एक टाइप के हार्ट्स के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13, स्पेड के 13, क्लब के 13. सो स्पेड के 13 तो 13/52 दैट इज 1/4 इक्वल्स टू 0.25. क्लियर? अ क्वीन ऑफ डायमंड. क्वीन ऑफ डायमंड इट इज सेम, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स तो 1 ही है, एक ही होता है. सो अगेन 1/52. सो इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है. सो टोटल फेवरेबल आउटकम 52, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. सो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स 1, सो 1/52. डिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैंने डिवीजन करके रखा है इसलिए मेंशन किया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ स्पेड, दैट इज किंग ऑफ स्पेड नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्पेड. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ स्पेड, सो 13/52 दैट इज 1/2. द क्वीन ऑफ डायमंड्स, दैट इज क्वीन ऑफ डायमंड्स हो जाएंगे 1/52 बिकॉज एक ही होती है क्वीन अपॉन डायमंड, दैट इज 1/50. क्लियर? कहीं मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स, सो डोंट गो ओवर इट. जस्ट समझना है कि क्या लिखा हुआ है, मेन चीज़ वो समझनी है. क्लियर? सो दिस इज हाउ. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 समझना शांति से, कोई भी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up. What is the probability that the card is a queen? Clear? See, first of all क्या है, सिर्फ डायमंड्स के 5 कार्ड्स निकाले हैं, that is 10, jack, queen and king and ace. यानी ये 5 कार्ड्स है. आपको क्या पूछा, what is the probability that the card is queen? So total favorable outcomes आपको पता है, 5 कार्ड्स है तो 5 ही हुए, दैट इज टोटल. और फेवरेबल आउटकम आपको चाहिए क्वीन, सो वो क्वीन 1 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 1/5, या फिर इसको आगे लेके जाओगे तो 0.2. इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे. सो 1/5 दैट इज 0.2. ये हो गया क्वीन के लिए. इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सेकेंड क्वेश्चन, कि वो भूल जाओ जो था. इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब उसको साइड में रख दिया. If we have taken a queen and we have put the queen aside, means we have kept aside, means साइड में रख दिया है उसको. What is the probability that the second card picked is an ace? अब देखो टोटल 5 कार्ड्स थे, उसमें से क्वीन को हमने निकाल के साइड में रख दिया, तो वो हमारा हो गया टोटल 4. नाउ 4 में से एस होने के चांसेस क्या है, तो 4 में से 1 ही एस है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 1/4 दैट इज 0.25.
ये फर्स्ट वाले का आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज अ क्वीन, पर हमने तो क्वीन को साइड में रख दिया, तो क्वीन इन 4 कार्ड्स में पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? सो आपका जो क्वीन है वो 0 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0/4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0. So total, if the queen is drawn and put aside, the total number of cards left is 5 minus 1, that is equals to 4. Total number of ace equals to 1. So P, probability of picking an ace equals to 1/4 equals to 0.25. Total numbers of queen, queen तो अब 0 है तो 0, so picking a queen that is 0/4 यानी 0. समझ में आया? चीज़ बेसिक है, बट एक एक चीज़ को समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। कितने? 12 डिफेक्टिव पीस थे पेन्स जो 132 गुड वंस के साथ में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। ऑब्वियसली बात है, पहले टोटल पेन्स देख लें हम लोग। सो टोटल पेन इक्वल्स टू 12 प्लस 132 इक्वल्स टू 144। क्लियर? ये टोटल पेन्स हो गए। फेवरेबल आपका आउटकम क्या है कि वो पेन जो है वो अच्छा निकलना चाहिए, गुड वन, इट वुड बी गुड वन। सो 132 इज द गुड वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 132 फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स मीन 144। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो 66 अपॉन 72, इसको और करके जाओगे तो 33 अपॉन 36। सो एज यू विश, यू कैन गो विथ जितना सिंप्लीफिकेशन करते हो। सो टोटल 144, that is 132 upon 144, so 11 upon 12, that is 0.916। बट आप लोग यहाँ पे 11 upon 12 तक भी छोड़ सकते हो, नो इश्यूज़। क्लियर? यू एज यू विश यू कैन, नो इश्यूज़। इससे ज़्यादा डेसिमल में, डिवीजन में वेस्ट नहीं करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन इट वुड बी। सो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that it is bulb is a defective? ठीक है? सो टोटल जो था वो 20 है। फेवरेबल मीन्स आपको जो निकालना है कि डिफेक्टिव पीस निकलेगा, तो डिफेक्टिव जो होगा 4 है। सो हम लोग डिफेक्टिव 4 लिख देते हैं। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 4/20 यानी 1/5, और इसको डिवीजन अगर करते हैं तो 0.2। जो इजी है डिवीजन वहाँ पे हम लोग इजीली कर देते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू डिवाइड इट। क्लियर? सो ये तो नॉर्मल इसका हुआ कि डिफेक्टिव 0.2, 4/20, 1/5। नाउ इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन इज, सपोज द बल्ब ड्रोन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, तो देखना। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इन्होंने क्या किया, जो 20 बल्ब्स थे उसमें से एक बल्ब निकाल दिया, मीन्स टोटल आउटकम्स आपके हो गए 19 फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन्होंने क्या किया, जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था। क्लियर? डिफेक्टिव फेवरेबल, जो डिफेक्टिव बल्ब्स थे, मीन्स मैं बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, जो टोटल डिफेक्टिव नहीं थे। क्लियर? दोज बल्ब्स विच वर नॉट डिफेक्टिव, सपोज नॉट डिफेक्टिव को एनडी से डिफाइन कर देते हैं, दैट इज टोटल 4 बल्ब्स डिफेक्टिव थे तो 16 बल्ब्स नॉट डिफेक्टिव थे। तो उसमें से 16 बल्ब में से एक वाला जो हमने लिया उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो टोटल 15 हो गए नॉट डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इक्वल्स टू 15/19, क्योंकि टोटल 15 बल्ब्स और 19 बल्ब्स होते हैं, क्योंकि एक बल्ब को हमने रिप्लेस नहीं किया है। सो total one non-defective bulb is drawn, then it is not replaced, that is 19. So total number of events, that is 19. Number of defective bulb equals to 19 minus 4 equals to 15. Non-defective bulbs, clear? Number of non-defective bulb equals to 19 minus 4 यानी 15. So probability of the bulb is not defective equals to 15/19. इसमें डिवीजन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2 मैंने डिवीजन करके रखा हुआ है, क्योंकि इट वुड बी इजी, हम लोग रफली करते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, सो डिवीजन नहीं करते हम लोग। वो बार बार नहीं बोलूँगा, बट नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कितने? 90 डिस्क है और 1 से 90 उसमें करेंगे। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, or divisible by 5.
तो सबसे पहले 1 to 90 है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से लेके 90 तक, सारे 2 डिजिट नंबर होंगे। सो आप देखोगे अगर 11 to 90 बोले तो हम लोग के टोटल 80 नंबर्स हो गए, और 10 को भी इंक्लूड करना है तो 81। सो टोटल नंबर्स आपके हो गए 81 जो 2 डिजिट के हैं, मीन्स फेवरेबल इवेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 81 जो हो गए 2 डिजिट्स नंबर, क्लियर। और टोटल नंबर्स कितने हैं, डिस्क 90 है, 1 to 90 मीन्स 90 है टोटल नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 81 अपॉन 90, और इसको सॉल्व करोगे तो 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा दैट इज़ 0.9। एज यू विश, आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सो वो हम लोग देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 81 सिंस 1 to 9 आर सिंगल डिजिट नंबर एंड सो therefore total 2 digit number equals to 90 minus 9 equals to 81, so 81 upon 90, 9 upon 10 that is 0.9। now second question क्या है, a perfect square number, तो 1 से 90 में perfect square एक तो 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 9 मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो टोटल फेवरेबल इवेंट जो हो गए हमारे 9, और टोटल 1 to 90 है। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 90 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1, क्लियर। सो ये आपका हो गया 0.1 परफेक्ट स्क्वायर के लिए। नाउ सेकेंड जो थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये हम लोग देख लेते हैं पहले। 9 दैट इज 0.1 आ गया आपका टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5। सो 5 एक आएगा, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 एंड 90। ये सारे जो होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कौन कितने नंबर्स हुए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 नंबर्स हुए हैं जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग काउंट करें सो हमारा हो जाता है टोटल 18 नंबर्स हुए। ये देखो 18 नंबर्स मैंने सारे लिस्ट आउट किए हुए हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 दैट इज 18 अपॉन 90 दैट इज 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बेसिक, लेकिन चीज़ याद होना चाहिए नंबर्स। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं, वेरियस पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, सिंगल डाइस 2 डाइस 1 and 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स, नंबर सिस्टम्स, सो वो सब पार्ट्स अगर देखते हो ना तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। टेक्स्ट बुक आपको पूरा इजी लगेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट, और कहीं पे भी कोई डाउट हो, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द सेक्शन सो दैट आपका सॉल्यूशन मिल सके। जितना जल्दी पॉसिबल होगा सॉल्यूशन मिलेगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तो ही पॉसिबल है। क्लियर? नाउ अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स as given, that is A B C D E A. Clear? These are the letters. So the dice is thrown once. What is the probability of getting A और second है D? इन दोनों में से probability क्या है आपको get करने के लिए? So first of all देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ A there are 2. So आपका favorable outcome first वाले के लिए हो गया 2, और total कितने हैं 1 2 3 4 5 and 6. सो टोटल आपका हो जाता है 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी ए की अगर हमको फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2 अपॉन 6 दैट इज 1/3. क्लियर? सो ये आपका हो जाएगा 1/3. इसका आंसर आया ए के लिए। फर्स्ट का आंसर आपका मिल गया। समझ में आया? नाउ सेकेंड मीन्स आप अब जा रहे हो डी के लिए। तो डी देखो आप, जैसे ये चीज़ मैंने बता दी, आपको डी के लिए देखना है। सो डी इज 2, नहीं आप बोलोगे 2 कहाँ है, ऑब्वियसली बात है डी 2 है ही नहीं, तो 2 कैसे बोलेंगे हम लोग। डी यहाँ पे सिर्फ 1 शो किया हुआ है। सो
फेवरेबल आउटकम आपका 1 हो गया, टोटल इट इज 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी दैट इज 1/6 आंसर आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1/6. क्लियर. सो total outcomes that is 6. Probability of favorable event upon total event, that is the total number of face having A on it is equals to 2. Probability of getting A, that is 2 upon 6, that is 1/3 equals to 0.33. The total number of faces having D on it equals to 1. Probability of getting D, that is equals to 1/6 equals to 0.176. आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा. बट 2/6 दैट इज़ 1/3 और 1/6 तो आपको पता ही है. नो नीड टू डिवाइड इट. क्लियर. समझ में आ गया. कोई प्रॉब्लम इसमें. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सी ये वाला क्वेश्चन आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, तो आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं या फिर इट इज़ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस, बट आपको समझ में आना चाहिए. ये कंसेप्ट जो मैंने आपको 12th कंसेप्ट था एरिया ऑफ कंसेप्ट, उसमें पूरा समझाया हुआ है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए. क्लियर. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब ये जो रीजन दिख रहा है 3/2 का, उसके अंदर आप डाइस रोल करते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 1 मीटर. ठीक है, 1 मीटर का डायमीटर के साथ ये सर्कल है. तो सिंपल सी चीज़ है. देखो पहले क्या करना है, आपका फेवरेबल एरिया कौन सा है, फेवरेबल एरिया है सर्कल, तो फेवरेबल इवेंट आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल. क्लियर. और टोटल इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड कर रहे हैं कि वो डाइस सर्कल में गिरा है, तो टोटल इवेंट में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल. सो यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बस जस्ट इतना ही करना है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. बस इसके बेस पे आप कर सकते हो. रेडियस आपका जो 1 मीटर डायमीटर बोला है, तो 0.5 आपका रेडियस हो गया. बस उसके हिसाब से अगर हम लोग करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल इज 3 into 2 that is 6 meter square. The area of circle equals to πr² यानी पाई 1/2 into 2. क्लियर. πr² है, हाँ ये स्क्वायर है, बाई मिस्टेक 2 मल्टीप्लीकेशन में हो गया, बट इट्स स्क्वायर, सो π/4. इसको सॉल्यूशन करोगे, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और अपॉन में 4 है तो 2 और इधर 11. सो 11/7 को अगर आप सॉल्व करते हैं, क्लियर, सॉरी 11/14 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 0.78. सो ये 0.78 आ गया सर्कल का. द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल्स टू π/4 अपॉन 6, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो π/24 हो गया, दैट इज 0.78 अपॉन 6. मैंने डायरेक्टली ये किया, π/24 नहीं लिखा, मैंने क्या किया, π/4 की वैल्यू रख दी 0.78. तो 0.78 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0.1, नियर अबाउट 0.1, आगे हो सकता है. और आप पाई के अंदर रखते हो π/24, दैट इज अप टू यू, बट अगर वैल्यूज में बोला है तो आपको रखना, फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ. ये बोर्ड की कंसेप्ट पे नहीं है, बट हमें आना चाहिए बाई चांस. देखो कभी भी बोर्ड में क्या एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस जैसा लग जाएगा. सो यू शुड बी क्लियर कि यहाँ पे सर्कल की जगह अगर ट्राइंगल भी होता तो ट्राइंगल का एरिया अपॉन रेक्टेंगल का एरिया, या कुछ ऐसा दे दे ट्राइंगल अपॉन सर्कल, तो सर्कल इंटू अपॉन ट्राइंगल कर दो. मैंने कंसेप्ट ऑफ एरिया के अंदर ये समझाया हुआ है, यू कैन रिफर दैट लिंक. कंसेप्ट ऑफ एरिया आप उसमें देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा. क्लियर. Now question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. देखो फर्स्ट केस टोटल पहले पेन्स देख लें, दैट इज 144 प्लस 20 दैट इज 164 टोटल पेन्स हैं. अब उन्होंने क्या बोला है, द शॉपकीपर शी विल बाई इफ इट इज़ गुड. तो टोटल क्या है, टोटल कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. सॉरी, तो यहाँ पे आपको टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल इज इक्वल्स टू 144, आउट ऑफ विच डिफेक्टिव जो है 20 है. 20 क्या है, डिफेक्टिव्स हैं. क्लियर. मेन चीज़ ये याद रखना है. तो शी विल बाई, अगर वो अच्छे हैं तो बाई करेंगे. तो डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, मैंने 144 प्लस 20 किया था, नहीं, नॉन डिफेक्टिव पेन इज 144 माइनस 20 दैट इज 124. सो इफ शी विल बाई, तो प्रोबेबिलिटी अगर वो बाई करती है, क्यों बाई करेगी, अगर डिफेक्टिव नहीं है तो, सो 124 अपॉन 144. और प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाई, तो
20 पेन्स जो है 20/144, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो बाद में, बट दिस इज हाउ यू विल गो विथ इट। क्लियर? इन्होंने टोटल 144 बोला, इसलिए टोटल पेन्स हम के 144 हो गए, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो अच्छे कितने हुए? नॉन डिफेक्टिव 124। सो वो चीज़ देखनी है। 144 डिफेक्टिव पेन्स 20, सो 144 minus 20 means 124। Probability of event equals to favorable event upon total events. Total number of event in which she will buy them, so favorable event upon 124, so buying that is 124 upon 144, 31 upon 36। Division आपकी मर्जी, आप करो तो it's upon you, but it's not required। Second, total number of event in which she will not buy। not buy means पेन अगर डिफेक्टिव है तो नहीं बाय करेंगे, तो टोटल डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20, so 20 upon 144 that is 5 upon 36, so 0.138 तो डिवाइड किया है। क्लियर? समझ में आया किस तरह से हमको करना है, आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ 22, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। से ये टेबल बहुत इजी है, आपने अगर मेरा ट्राइंगल वाला कंसेप्ट देखा होगा, जो मैंने सम्स के अंदर यूज़ किया था, सम्स ऑफ ट्राइंगल, सो उसके बेस पे अगर हम लोग फील करें, देखो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट वैसे मेरे पास होगा, मैंने चलो एक सेकंड मैंने किया हुआ, यस दिस इज ओवर हियर। सम 2 और 12 होंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। 3 और 11 अगर है तो 2 होगी। 4 and 10 है तो 3 है। 5 और 9, ये जो आपने देखा होगा सम ऑफ ट्राइंगल्स, मीन्स आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट सम इक्वल्स टू 3, सम इक्वल्स टू 3, तो यू विल गेट 2, सम इक्वल्स टू 4 तो यू विल गेट 3, सम इक्वल्स टू 5 सो यू विल गेट 4। सो डिपेंड्स। सो ये ट्राइंगल के बेस पे आपको इस चीज़ को फिल करना है। सो सपोज यहाँ पे देखो 2 था तो 1/36, तो देख लो 1 अपॉन टोटल, आपको पता है 2 डाइस का टोटल आउटकम कितना होता है, दैट इज 36 होता है। सो 2 है तो 1/36, क्योंकि 1 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर आपको पूछा जाए 3, तो 3 के कितने 2 पॉसिबल आउटकम्स है, तो 2/36। 4 तो 3/36, 5 तो 4/36, 6 तो 5/36 एंड 7 तो 6/36। तो इस तरह से हम फिल करेंगे तो ये टेबल पूरा कंप्लीटली फिल हो सकता है विदाउट योर सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस ट्राइंगल का यूटिलाइज कर सकते हो। इट्स ईजी क्वाइट, और आपको टफ भी नहीं लगेगा, और प्लस फास्ट कैलकुलेशन होगा, क्योंकि पूरा सैम्पल स्पेस लिखोगे फिर करोगे तो इट विल टेक टाइम। क्लियर? सो दिस इज हाउ अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this statement? Justify your solution. अब आप खुद देख लो, आपके सामने खुद के सॉल्यूशन है। 2 का 1/36 है, 3 का 2/36 है, 4 का 3/36 है। हाउ कुड दिस स्टूडेंट बी सेइंग 1/11? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट एज इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड इन 1 that the number of all possible outcome is 36 and not 11। ये दिख रहा है 36 आउटकम्स है, सो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्री नहीं करते। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times, 1 rupee coins को 3 times and noting its outcome each time। Hanif wins if all the toss give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। देखो 3 टाइम्स अगर उछाल रहे हैं तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, देन तीनों 3 टेल हो सकते हैं, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, एंड हेड टेल टेल। दिस आर द टोटल 8 आउटकम्स विच कैन बी पॉसिबल फॉर 3 कॉइन टॉस। आपने कंसेप्ट में देखा ही होगा। क्लियर? अब क्या, नाउ एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू, हनीफ विंस if all the tosses are heads and all the tosses are tails, बट हमको पूछा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर हनीफ विल लूज, तो लूज होने के चांसेस जब तीनों हेड या तीनों टेल नहीं है, सो वो हो जाते हैं हमारे ये वाले ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6/8 इसका आंसर आएगा, दैट इज 3/4। क्लियर? सो ये रहा हेड, टोटल 8 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इन विच हनीफ विल लूज द गेम, दैट इज हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड head tail 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 head tail equals to 6। तो probability of losing the game that is equals to 6/8, यानी 3/4 उसको डिवाइड करते हैं तो 0.75 हो सकता है। इट्स ए नो यूज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट अ फेस 5 टर्निंग अप व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर? ये आपको मैंने कंसेप्ट में समझाया था। 2 डाइस अगर रोल करते हैं तो 5 का, देखो 5 फेस एटलीस्ट 1 टाइम, यानी 2 बार आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. टोटल 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 फेज टर्न अप हो सकता है. सो व्हाट इज फेवरेबल इवेंट? आपके 11 हो गए, टोटल 36. सो फेज 5 टर्निंग अप इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट मीन्स 11/36. इसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट फेज 5 नॉट टर्निंग अप, यानी फेज 5 टर्निंग अप हो ही ना when 2 dice are rolled together. So बाकी के सारे आउटकम्स 36 थे टोटल आउटकम्स. क्लियर? 36 में से हमने देखा 11 के अंदर -11 के अंदर 5 आउटकम्स आ रहा है. सो 36 - 11 दैट इज 25. क्लियर? सो 25 फेवरेबल आउटकम हो गए. ये आपने कंसेप्ट देखा होगा. सो 25/36 इसका आंसर आता है. क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, that is, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your solution. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 1 tails, or 2 tails, or 1 of each. Therefore each of these outcomes the probability is 1/3. तो आप खुद देखो, हम अगर करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, टेल हेड और टेल टेल. तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे इन्होंने 3 बोले हैं, लेकिन हमारे पास टोटल आउटकम्स 4 आते हैं. सो ऑल पॉसिबल इवेंट्स आर 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर आर 2/4 इक्वल्स टू 1/2. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1/3 का, वो इनकरेक्ट है बिकॉज इट वुड बी 2/4 यानी 1/2. नाउ इफ डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं. टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो 6 में से 3 आर ऑड नंबर्स एंड 3 आर इवन नंबर्स. सो इट विल बी परफेक्टली करेक्ट. क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. सो थैंक यू वेरी मच. और कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व इट आउट. आपका कोई भी डाउट है आपका क्लियर हो सकता है. Thank you very much.